دیوانوں ہو جاؤ تیار، PSL 5 کی افتتاحی تقریب سجنے میں رہ گئے گھنٹے 4۔ رنگ و نور کی ہوگی بہار، موسیقی کا تڑکا لگائیں گے راک، پاپ اور لوک فنکار۔ رنگ دکھائیں گے راحت فتح علی، سجاد علی اور عارف لوہار۔ سنم ماروی اور آئمہ بیگ بھی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی کے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا ہر میچ ہوگا ہائی وولٹیج۔ رات 9 بجے چھڑے گی کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی جنگ۔ سرفراز احمد کو بلے باز احمد شہزاد، شین واٹسن اور جسن روئے پر مان۔ محمد نواز، حسنین اور نسیم شاہ بھی وکٹیں اڑانے کے لیے تیار۔ ادھر اسلام آباد کے پاس ہیں شاداب خان، آصف علی، رونکی اور ڈیوڈ میلان۔ ڈیل سٹین، فہیم اشرف، رومان رئیس اور محمد موسیٰ گیند سے تباہی مچائیں گے۔ PSL کے تمام میچز پاکستان میں ہونے کی خوشی ہے۔ ہر میچ اہم ہے، عمدہ کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کی پریس کانفرنس، مزید بولے پاکستان کی اعزازی شہریت ملنا باعث فخر ہوگا۔ کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کو بےتاب، شرجیل خان کی واپسی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کرکٹ دھمال کے لیے شائقین بے قرار، ہر سو پھیلی ہے رنگ و نور کی بہار۔ ستاروں کی کہکشاں کراچی کی سڑکوں پر اتر آئی، کھلاڑیوں کی تصاویر اور پوسٹر جگہ جگہ نصب۔ ٹیموں کی ٹی شرٹس، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے کے لیے بازاروں میں رش۔ بچوں اور بڑوں اور خواتین کا جنون آسمان چھونے لگا، کوئی اسلام آباد کا دیوانہ تو کسی کو کوئٹہ کی جیت کا یقین۔ فیصل آباد کی طالبات کراچی کنگز کی پرستار نکلی۔ پہلے میچ سے قبل ہی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو لگ گیا جھٹکا۔ جار مزاج بلے باز عمر اکمل ہر طرز کی کرکٹ کے لیے معطل۔ عمر اکمل کو PCB نے اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت معطل کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو عمر اکمل کا متبادل کھلاڑی لینے کی اجازت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق عمر اکمل کو اسپاٹ فکسنگ کے شبہات پر معطل کیا گیا۔ اینٹی کرپشن یونٹ نے رات بھر عمر اکمل سے تحقیقات کی، ایک مشکوک شخص سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ کراچی والوں کی مشکل آسان، PSL کے لیے جاری ہو گیا ٹریفک پلان۔ نیشنل اسٹیڈیم آنے کے لیے یونیورسٹی روڈ، شہید ملت روڈ اور راشد منہاس روڈ کھلے رہیں گے۔ حسن اسکوائر یونیورسٹی روڈ، ایکسپو سینٹر، غریب نواز گراؤنڈ ڈالمیا، رنا لیاقت کالج پر پارکنگ پوائنٹس قائم۔ شٹل سروس کے ذریعے شائقین کو اسٹیڈیم لایا جائے گا۔ PSL کا بخار لاہوریوں کے سر پر بھی سوار، قذافی اسٹیڈیم میں تیاریاں زوروں پر۔ انکلوئر کی صفائی ستھرائی جاری، نئی گیلری بھی قائم۔ تمام کپتانوں اور PSB چیئرمینز کی تصاویر چسپاں۔ قذافی اسٹیڈیم میں کل لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے۔ اٹارنی جنرل انور منصور نے استعفیٰ دے دیا۔ انور منصور کا کہنا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر مستعفی ہوئے۔ صدر مملکت سے استعفیٰ فوری طور پر منظور کرنے کی استدعا۔ ادھر وزارت قانون نے اٹارنی جنرل کی عدالت میں دیے گئے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ مہنگائی کی روک تھام کا جائزہ لیا جائے گا، گیس اور بجلی کے بلوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ پاکستان نیشنل ایجوکیشن پلان 2020 پیش ہوگا۔ بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن کے قیام اور احساس پروگرام میں پارلیمنٹیرینز کی شمولیت کی تجویز پیش کی جائے گی۔ سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی اور احسن اقبال کی درخواست ضمانت کی سماعت بغیر کارروائی 24 فروری تک ملتوی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے طبیعت کی ناسازی کے باعث چھٹی پر ہونے کے باعث سماعت نہیں ہو سکی۔ PTA کے بعض افراد بغیر ٹیکس لیے EMI نمبر ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، گینگ پکڑ لیا، انکوائری جاری ہے۔ FIA کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں بریفنگ، منظم گینگ سرکاری نمبر سے ٹیلی فون کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے جعلی میسیجز کی تحقیقات جاری ہیں۔
जाली आईडी पर चलने वाले नंबर्स लोकेट नहीं होते। अमरीकी सदर का दौरा भारत, ट्रंप सालसी की पेशकश को अमली जामा पहनाएं, पाकिस्तान का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है अमरीकी सदर मकबूजा कश्मीर के अवाम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। आयशा फारूकी मजीद बोली कि पाकिस्तानी सिफारत खाने से खसूसी टास्क फोर्स के 2 अफसरान को वुहान भेज दिया, जो वुहान में फंसे तलबा से मुसलसल राब्ते में हैं। उधर चीन में फंसे तलबा के वरसा का मुल्तान में एहतजाज। कंप्यूटर जनरेशन का मुहसिन, कॉपी, कट और पेस्ट की कमांड इजाद करने वाले साइंसदान लॉरेंस टेस्लर चल बसे। वो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के भी मौजूद थे। लॉरेंस की उम्र 74 बरस थी। और सूफियाना कलाम की माया नाज गुलकारा सुरों की मलका आबदा परवीन 66 बरस की हो गई। सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत कई जुबानों में गीत गाकर अपने मद्दाहों को महसूस किया। आबदा परवीन को फनकाराना खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL का बुखार बच्चों बूढ़ों सबके सर पर सवार है, जबकि बुलेटिन में जिक्र होगा कंप्यूटर जनरेशन के मौसम के बारे में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की फौरी तौर पर इस्तीफा कबूल करने की इस्तदा। मतन में लिखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने तैनाती पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट, सिंध और कराची बार का ताहयात रुकन हूँ। इस सूरत हाल की रोशनी में ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। दूसरी जानिब वजारत कानून ने अटॉर्नी जनरल के अदालत में दिए गए बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वजारत कानून ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने जो बयान दिया उसकी इजाज़त हुकूमत से नहीं ली गई। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, क्या इत्तलात है? हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट कीजिएगा कि अदालत में उन्होंने क्या बयान दिया था जिससे वजारत कानून ने लाताल्लुकी का इजहार किया, और इस्तीफे की बुनियादी वजह क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल की जानिब से परसों जब काजी फाइज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी मंगल के रोज, तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने इस मुकदमे के आगाज में ये एतराज उठाया था जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर कि वो इस बेंच में नहीं बैठने चाहिए, जिसके बाद वो दोनों जजेस बेंच से अलग हो गए थे। तो अटॉर्नी जनरल ये कहना चाह रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनके खिलाफ सदारती रेफरेंस जो है वो हुकूमत ने दायर किया है, अपनी मर्जी का बेंच बनवाना चाहते थे, इसीलिए बेंच पर उन्होंने एतराज उठाया। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर की है, ये दरखास्त कहाँ तैयार हुई, किसने तैयार की और कौन कौन इस दरखास्त के प्रेवी हैं, मुझे सब इल्म है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिस पर अदालत में बैठे जो जजेस थे, 10 रुकनी जो बेंच था, उनकी जानिब से सख्त बरीमी का इजहार जो है वो किया गया था। लेकिन अदालत ने ये भी कहा था कि अगर अनवर मंसूर अपने ये अल्फाज वापस ले लेते हैं तो फिर जो है वो जब अदालत ने ये कहा तो अनवर मंसूर ने अपने ये अल्फाज वापस ले लिए थे। और अदालत ने ये भी कहा था कि जो ये माफी क्योंकि उन्होंने मांग ली है, उन्होंने क्योंकि अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, तो इसके बाद मीडिया को रोक दिया गया था कि आपने इस पोर्शन को आपने रिपोर्ट नहीं करना, जिसके बाद मीडिया ने इस मामले को रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन कल जब उन्होंने दोबारा अपने दलाइल का आगाज किया तो अदालत उनसे बार बार ये इस्तफसार कर रही थी कि आप जो वफाकी हुकूमत का मुकदमा है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरखास्त में इल्जामात हुकूमत पर लगाए हैं, उसके हवाले से आर्गूमेंट करें। तो जो अटॉर्नी जनरल थे वो इररेलेवेंट आर्गूमेंट जो है वो अदालत में कर रहे थे और अदालती सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर अदालत ने खासा बर्मी का इजहार भी किया और ये भी कहा कि आप बड़ी कमाल खूबसूरती से अदालत का जो वक्त है वो जाया कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने ना सिर्फ उन्हें ये कहा कि आइंदा समाअत पर आप तैयारी करके आएंगे, बल्कि अदालत ने उनके गुज़िश्ता रोज के बयान का भी नोटिस देते उन्हें ये कहा कि आपने
जो कल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया था, उस हवाले से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको तहरीरी माफी जो है वो अदालत से मांगना होगी। और कल जब अदालत ने ऑर्डर जारी किया था तो उसी वक्त ही जो अदालत के कॉरिडोर्स में जो वकला मौजूद थे या जो कानून के शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो लोग मौजूद थे, उन हल्कों की जानिब से कहा जा रहा था कि अटॉर्नी जनरल का अब अपने ओहदे पर बरकरार रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। तो इस बात का इम्कान है कि बहुत जल्द उनका इस्तीफा जो है वो आ सकता है, और आज वही हुआ कि उनका इस्तीफा भी आया। इमरान, अंदर की कहानी क्या है ये बताइएगा। क्या इस्तीफा हुकूमत ने पहले मांगा है या फिर उन्होंने खुद पहले मुस्ताफी हो जाने का फैसला कर लिया? देखिए, जो सिनेरियो बना है उस सिनेरियो का वो सिनेरियो यही बताता है कि उस सिनेरियो के बाद जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच में हुआ था, उसके बाद हुकूमत को भी इस्तीफा मांगने की इतनी जो है वो जरूरत नहीं थी जितना कि खुद अटॉर्नी जनरल के लिए लाइबिलिटी बन गई थी कि अब वो अपने ओहदे पर ना रहें, क्योंकि वो अदालत के सवालात से भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, अदालत का मुकदमा भी जो है वो उसका दिफा नहीं कर पा रहे थे, सदारती रेफरेंस का दिफा नहीं कर पा रहे थे। तो उन पर ये इस्तीफा एक किस्म की लाइबिलिटी बन गई थी, और जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने जवाब तो यही पेश किया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उनसे इस्तीफा मांगा जवाब उन्होंने ये पेश किया कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने तैनाती पर सवाल उठाए थे, लेकिन यहां पर यह भी सवाल उठता है कि आप इतने अरसे से तैनात थे तो अब आकर क्यों ये फैसला किया कि मुस्ताफी हो जाऊं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोजा सरकारी दौरा कुवैत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से अलहदा मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कुवैती मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। मुलाकातों में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की कुवैती नेशनल गार्ड के अंडर सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। कुवैत की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कुवैती क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कौम और फौज के आज़म की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोजा सरकारी दौरा कुवैत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से अलहदा मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा की कुवैती नेशनल गार्ड्स के अंडर सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। कुवैत की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा है। कुवैती क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कौम और फौज के अज़्म की तारीफ की है। आर्मी चीफ ने कुवैती मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई और अवतार सिंह पन्नू ने मुतालबा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा हुआ, जिसमें भारत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहरे का मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा भारत से कबल इस बात की याद दहानी कराना था कि वो कश्मीरियों पर जारी जुल्म और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का मामला उठाएं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, अमरीकी सदर दौरा भारत के दौरान इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक का मामला उठाएं। अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दौरा करने वाले हैं, उनसे ये डिमांड कर सकें कि जब उन्होंने इंडिया जाना है तो हिटलर का जो दूसरा रूप बूदी है उससे सबसे पहले इंडिया में होने वाले जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करनी है वो करनी है, क्योंकि अमेरिका इंसानी हकूक़ का एक अलमबरदार मुल्क है और अमेरिकी सदर की हैसियत से मिस्टर ट्रंप को कश्मीर में होने वाले मजालिम, सिखों पे होने वाले मजालिम का नोटिस लेना चाहिए और भारत से तिजारती मुआहदों से पहले जो कश्मीर इशू है जिसकी वो सालिसी की पेशकश बारहा कर चुके हैं, उस इशू के हल तलब मसले को उन्होंने उजागर करना है। अवतार सिंह पन्नू ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि वो मोदी के खून आलूद हाथों में हाथ देने के बजाय सिखों और मुसलमानों पर मजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डॉक्टर गुलाम नबी फाई ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सालिसी की पेशकश की और सदर ट्रंप पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं। पाक भारत जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी। हमारा एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही 5 दफ़ा सालिसी की ऑफ़र की है और इत्तेफाक से कल जो एंटोनियो गुतेरेस साहब सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इस्लामाबाद जाकर खुद सालिसी की ऑफ़र की है और ये भी कहा है कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये हल होना चाहिए। मुज़ाहिरीन का कहना था, अमरीकी सदर दौरा भारत के दौरान मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए रोड मैप तय करें। सिर्फ तिजारती मुफाद को ही न देखा जाए बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात का इलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी वफ़द को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात और इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी पार्लियामेंट के वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मसले कश्मीर पर फोकस करने पर बरतानवी ग्रुप को सराहा और मकबूजा कश्मीर में बदतरीन इंसानी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को बताया कि भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। 80 लाख कश्मीरी गुज़श्ता 6 माह से बदतरीन लॉकडाउन का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों से भारत ने तमाम हुकूक और आज़ादी छीन ली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात और इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। RSS से मुतासिर बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रही है। मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर का हल ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जराइम से मुतल्लिक मामलात उठाए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर पर बोलने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को भारत ने तो डिपोर्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने मुल्क भर में मर्जी के मकामात पर दौरा करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर पर गासिबाना कब्जा जमाने वाले भारत की एक और हठधर्मी का अमन से जवाब। भारत ने मसला कश्मीर पर बोलने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेबी अब्राहम्स को डिपोर्ट किया तो वो 8 अरकान पार्लियामेंट के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर आ गईं। वज़ीर ख़ारजा ने डेबी अब्राहम्स को खुशामदीद कहा और दावत दी कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मुल्क भर में जहाँ चाहें जा सकते हैं। डेबी अब्राहम्स ने पाकिस्तान के रवैये को मस्बत करार देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहरियों को काफी मसाइल का सामना है। We consist of parliamentarians from across all political parties who are keenly interested in the issues that Kashmiri people are facing now and have done over several decades now, but particularly the issues that have been faced since August last year. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डेबी अब्राहम्स को चंद रोज कबल दिल्ली नहीं जाने दिया गया। वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुशाहिदा करना चाहती थीं, ताहम पाकिस्तान में बरतानवी पार्लियामेंट ग्रुप को आज़ादाना नक्लो हरकत की इजाज़त है। बरतानिया ने ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इसके तहत कम हुनरमंद अफराद को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हुनरमंद अफराद के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 25,600 पाउंड सालाना की शर्त रख दी गई। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखते हैं। ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन का जो मंसूबा जारी किया गया है, इसके तहत कम हुनर अफराद या मुलाजमीन को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुलाजमत देने वालों से कहा गया है कि यूरोप से सस्ती मजदूरी पर इन्हिसार करने से गुरेज किया जाए और मुतबादिल के तौर पर स्टाफ को रोकने और ऑटोमेशन या खुदकार टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए सरमायाकारी की जाए। बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद जब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की आज़ाद नकलो हरकत खत्म हो जाएगी तो यूरोप या दीगर ममालिक से बरतानिया आने वाले शहरियों के साथ एक ही पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजारत
दाखिला के मुताबिक हुकूमत हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई और कम हुनर रखने वाले अफराद की बरतानिया आमद को कम करना चाहती है। वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं हुकूमत हकीकी मानों में बासलाहियत अफराद को बरतानिया लाना चाहती है। Well, I think first of all, when it comes to the labour market itself, we will continue to look at the dynamics of the labour market and sectors if there are shortages, labour shortages in key sectors. I've been working with the Migration Advisory Committee. Many of the recommendations that they put to me a few weeks ago have featured now in the development of this policy. So we will continue to review the labour market, key sectors in the economy. And of course, as I've said, there'll be tradable points over a phased period of time with the development of this immigration system that will facilitate and enable people with the right skills that our economy needs. बोरिस जॉनसन हुकूमत का कहना है कि इसने मंशूर के मुताबिक पॉइंट्स पर मबनी इमिग्रेशन निज़ाम का वादा पूरा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में इमिग्रेशन कवानीन में मज़ीद तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं, जिससे ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल पर पॉलिसी बनाई जाएगी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। लीड्स के राउंड वार्ड से लेबर पार्टी की उम्मीदवार बराए काउंसलर ज़ारा हुसैन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट, शेडो वज़ीर रिचर्ड बर्गन, फेबियन हैमिल्टन और काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आसिफ कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया में मई में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। लीड्स के राउंडे वार्ड से पहली बार लेबर पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाली उम्मीदवार ज़ारा हुसैन ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से मकामी होटल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। शेडो वजीर रिचर्ड बर्गन और फेबियन हैमिल्टन ने खिताब करते हुए कहा कि टोरी पार्टी अवाम की बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं रखती। लेबर पार्टी ही बरतानिया के अवाम के मसाइल के हल का नाम है। अवाम बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को वोट देकर कामयाब करें। उम्मीदवार बराए काउंसलर ज़ारा हुसैन ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो इलेक्शन जीत कर अवाम की उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। And took part in the election, so I'm really looking forward to running the campaign and going towards the elections and fighting for a Labour government. As a Labour councillor, what I want to achieve is to build an inclusive community which is welcoming of every race, every background, and make sure that everybody's included and that our services that the council provides us, despite the cuts from the Tory government, as the best that they could be, and they provide, and we all together provide for our local community. दीगर शुरका ने ज़ारा हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इंतखाबात में उनकी भरपूर हमायत की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी न सिर्फ बरतानवी अवाम बल्कि मुसलमानों के भी खिलाफ है। शहरी बल्दियाती इंतखाबात में टोरी पार्टी को मुस्तरद करें। Well, I think this is going to be a very important local election. Following our defeat on December the 12th at the general election, it's very important that we retain our council seats, that we elect councillors who represent the people and put into practice our socialist values, and therefore we're going to have to work very hard. Obviously Zara's a new candidate. ये तो साबित हो गया है कि टोरी पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं हमारी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने जैसे साजिद जावेद को भी सैक कर दिया, एक और जूनियर मिनिस्टर था मुसलमान, उसको भी सैक कर दिया। तो उनकी बिल्कुल राइट विंग पॉलिसीज हैं, किसी भी लिहाज से हमारे लिए वो मुनासिब नहीं। मिक्स कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर मौजूद है, लीड सिटी काउंसिल के काउंसलर हैं और 2 MP यहाँ पर मौजूद हैं। इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए रिचर्ड बर्गन है और फेबियन हैमिल्टन फ्रॉम लीड से हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा कैंपेन होगा और हम सब जो है ना इसको जो है ना जो कुछ भी हो सका करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बारी अक्सरियत में यार कामयाब हो। I'm really excited to be here for Zara Hussain, our candidate for Round here. It's really good that we've already got so many people in the room. It's really important that we come out and support Zara because she's the very first time she's going to be the candidate in Round here. We need more women, especially Asian women, to come forward, so it's very exciting. The Labour Party is the party that represents BME communities, and with more representation from Asian women, this will make the party stronger, make Leeds City Council, our Labour Party, more stronger on the council as well. Zara जो हमारी local candidate है, यहाँ मई का जो election local election हो रहा है, उसके सिलसिले में इकट्ठे हुए फंड रेजिंग करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। It's very important firstly to get involved in politics and to get involved in Labour because it's troubled times, especially for the youth. On behalf of Al Qudwa Institute and Al Qudwa Foundation, we're aiming
to build bridges within the communities. Really happy to support Zara's campaign. We're very lucky to have such a wonderful candidate in Zara. She really throws herself into campaigning. When it was the general election, she went out every bit of the polling day. तकरीब के इख्तिताम पर ज़ारा हुसैन की इलेक्शन मुहिम के लिए रकम इकट्ठी की गई। राइफल टिकट्स के जरिए कुरानंदाजी और इनामात भी तकसीम किए गए। ज़ारा हुसैन काउंसलर हेयर हिल वार्ड आरफ हुसैन की होनहार साहबजादी हैं। उनका आबाई ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी से है। इलेक्शन जीतने की सूरत में वो काउंसलर मुंतखब होने वाली सबसे कम उम्र उम्मीदवार होंगी। आसफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से सानिहा APS पेशावर में जख्मी होने वाले तालिबे इल्म वलीद खान को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदा आबिद काज़मी वलीद खान के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, APS के ज़ख्मी तालिबे इल्म वलीद खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनको अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया की तरफ से अवार्ड दिया गया। इनसे पूछते हैं कि ये अवार्ड इनको किस ज़िमन में मिला है। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप ये बताएं कि ये अवार्ड आपको क्यों दिया गया? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मुझे जो मेरी जो कैंपेन है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़, उसके सिलसिले में मुझे दिया गया। ये अवार्ड बेसिकली जो यूथ होते हैं, जो यंग एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी इशू के बारे में। तो मेरा जो कैंपेन थी वो बेसिकली टेररिज्म के ख़िलाफ़ थी, और कि जो यहाँ की जो यूथ हैं, जो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो ब्रेन वॉश होते हैं या उनकी तरफ से मैनिपुलेट होते हैं, तो उन यूथ में अवेयरनेस फैलाने की वजह से मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा गया है। आपने जिस तरह ख़ुद भी दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और जिस तरह आपने आपको मेंटेन किया और फिर दूसरों को ये सारे मैसेज पहुँचाया, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरीके से दूसरों को मैसेज पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक अहम पहलू होता है किसी भी इशू को। अगर आप ख़ुद किसी मरहले से गुज़रें तो फिर लोग आपकी बात और भी गौर से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप भी इससे ख़ुद ही गुज़रे हैं, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और जब आपके पास एक इतनी पावरफुल स्टोरी हो कि ये स्टोरी जो थी वो मेरी वीकनेस थी, लेकिन मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। सबसे पहले मैंने जब अपनी पहली स्पीच की थी तो वो मेरे अपने स्कूल में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्कूल, जिसमें अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस टाइम तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपनी पहली स्पीच कंप्लीट की तो उसके बाद जो यहाँ पे मुझे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार किसी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और जब मैंने देखा तो यहाँ के जो सारे बच्चे थे, जो टीचर्स थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने वो रिएक्शन उनका देखा तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो है वो मेरी बात सुनना चाहते हैं। मेरी बात जब मैं कर रहा हूँ उसमें पावर है, उसमें असर है, जो मेरी स्टोरी है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये जो आपको अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिलने के बाद आपके जो अंदर के तसरात हैं या आपकी जो हिम्मत है किस हद तक बढ़ी है? जी बिल्कुल, इंडीड इस तरह के जो अवार्ड्स हैं या इस तरह की जो रिकग्निशंस हैं, उससे जो हमारे हौसले हैं वो और भी ज़्यादा बुलंद होते हैं, और भी ज़्यादा हम पुरज़म होते हैं। क्योंकि मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। क्योंकि जो मेरा इस अवार्ड के लिए जो मेरा नाम था वो नवंबर में नॉमिनेट हुआ था। जो शहीद हुए हैं उनके वालिदैन और जो मेरे ज़ख्मी दोस्त हैं और जितने भी पाकिस्तानी कौम है हमारे लिए, और ये अवार्ड तो सबसे पहले मैं उनके नाम करता हूँ, ये उनके लिए है। और उनके लिए यही मैसेज है कि जो शहीदों के जो वालिदैन हैं और जितने भी हमारे जो ज़ख्मी दोस्त थे, उनको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है, और मेरे जैसे हज़ारों और लाखों नौजवानों को हिम्मत मिलती है उनकी हिम्मत और हौसले को देखकर। और उन्हें आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम जो दहशतगर्दी का जो नासूर है उसका हम ख़ात्मा करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मैं हमेशा क्योंकि ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार था तो बेहतर तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से लोगों को बता सकता हूँ। तो मेरी कोशिश यह है कि हम इसके ख़िलाफ़ ज़रूर कामयाब होंगे और दहशतगर्दी को हराने में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। जी। पाकिस्तान कॉन्सुलेट ब्रेडफोर्ड के नए कौंसल जनरल इब्रार हुसैन के एजाज़ में पाकिस्तान क्लब ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें पाकिस्तान क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। वकार बाबर की ये रिपोर्ट देखिए।
پاکستان کونسلیٹ بریڈفورڈ کے نئے کونسل جنرل ابرار حسین کے اعزاز میں پاکستان کلب نے استقبالیہ کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان کلب کے چیئرمین، ڈائریکٹرز، عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل جنرل کو اپنے تعاون کی بھرپور یقین دہانی کروائی گئی۔ بریڈفورڈ میں جو نئے ہمارے کونسل جنرل صاحب آئے ہیں ان کو اور ان کی مسز کو یہاں پر بلایا اور ان کے ساتھ ڈنر کیا ہے، اور ہم نے کچھ پاکستانی کمیونٹیز کے مسائل کے بارے میں بات کی، جو ہماری کونسلیٹ ہے اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کی۔ میرے خیال سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری کونسلیٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسے پروفیشنل بندے ہمارے پاس یہاں پر بھیجے گئے ہیں جو کہ اس کام کو اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کونسلیٹ کے ساتھ پاکستان کی عزت جڑی ہے، اور پاکستان کلب ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، جو چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو جنہوں نے پاکستان کے لیے کارنامہ کیا ہو۔ یہاں جتنے بھی پاکستان کلب کے ڈائریکٹر ہیں وہ سارے فیملی کے ساتھ انوائٹڈ ہیں۔ یہاں انہوں نے انشاءاللہ کونسل جنرل کو یقین دلایا جب بھی ہماری ضرورت پڑی کسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جو کونسلیٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں اور جو رہے ہیں، جو آنے والے کل کا جو سامنا ہمارے طرف ہے، وہ ساری باتیں ہم نے آج یہاں اس محفل میں کی۔ برطانیہ میں یہ کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اور بچوں کو پاکستان کی ثقافت اور روایات سے روشناس کرائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا اور بھی جتنی بھی انگریز ہیں یہاں پر، ان سب کو انوائٹ کریں اور اپنی روایات سے انہیں روشناس کرائیں۔ کونسل جنرل نے پاکستان کلب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بریڈفورڈ کونسلیٹ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ It's a very laudable initiative by the Pakistani community کہ a group of professionals who are working in various different fields, they have come together for the cause of Pakistan. Since these people are very well connected locally, so they can use their position, they can use their connections to further the cause of Pakistan and the cause of Kashmir. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی میں یکجہتی کو فروغ دیا جائے تو پاکستان کے سافٹ امیج کو بہتر انداز میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ دوران تقریب کونسل جنرل ابرار حسین کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈفورڈ۔ بلیٹن میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم نے مریخ مشن ہوپ پروب کے آخری حصے کی تنصیب مکمل ہونے کی تقریب کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ مشن متحدہ عرب امارات کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کے لیے آزمائش ہے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ ہوپ پروب کا مشن امارات کا مریخ مشن بھی کہلاتا ہے، اور یہ کسی بھی عرب اور اسلامی ملک کا پہلا خلائی مشن ہے جسے سرخ سیارے کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس مشن کو بنانے والی ٹیم میں 150 انجینئرز اور محققین شامل ہیں، جن میں 34% خواتین ہیں، جو کہ ایسے کسی بھی عالمی منصوبے میں خواتین کی سب سے بڑی تعداد ہیں۔ مریخ مشن ہوپ پروب کے آخری حصے کی تنصیب مکمل ہونے کی تقریب کے موقع پر دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ UAE کی تاریخی کامیابیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس مشن سے مریخ کی تلاش ایک حقیقت بننے جا رہی ہے۔ مریخ تک پہنچنا ناممکن نہیں رہا، اور یہ مشن ان نوجوانوں کے عزم کا ثبوت ہے جنہوں نے اس کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کی۔ اس موقع پر دبئی کے ولی عہد اور محمد بن راشد اسپیس سینٹر کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم بھی موجود تھے، جبکہ ہوپ پرو پر نصب کیے جانے والے آخری حصے پر سپریم کاؤنسل کے اراکین اور امارات کے حکمرانوں ولی عہدوں کے نام اور دستخط موجود ہیں۔ اس پر درج ایک تحریر میں لکھا ہے کہ امید کی طاقت زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتی ہے۔
شیخ محمد کو محمد بن راشد خلائی مرکز کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوپ پروب کے مشن سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ مریخ مشن کو رواں سال جولائی میں روانہ کر دیا جائے گا۔ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ ڈاکٹر منیر کا شمار سوئٹزرلینڈ کے ٹاپ 10 نیورو سرجنز میں ہوتا ہے، جو اپنے کیریئر کے دوران 6500 سے زائد کامیاب آپریشنز کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر منیر پاکستان میں ایک بڑا اسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ زیورخ میں ہمارے نمائندہ شاہد احمد شاہد سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ سرجن ڈاکٹر محمد منیر ہیں، جن کا شمار سوئٹزرلینڈ کے ٹاپ 10 نیورو سرجنز میں ہوتا ہے۔ ایک نیورو سرجن کس طرح سے اپنے مریضوں کو دیکھتا ہے، اور جب اس کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو میری زندگی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن، میں نے 6500 سے اوپر آپریشن کیے ہیں، کمر کے اور دماغ کے آپریشن کیے ہیں۔ میرے پاس جو ابھی مریض آیا تھا وہ کمر کا مریض تھا، اس کو ڈسک کا پرابلم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو جوائنٹ تھا ان کا پرابلم تھا۔ اس کو یکدم جو ہے نا بہت زیادہ درد ہوئی، بلوکیج ہو گیا، تو میں نے اس کو سی ٹی اسکین میں وہ انفلٹریشن کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے جب وہ بہت درد میں کوئی مریض آتا ہے تو بعد میں ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے جو سی ٹی کی اسٹیٹ انفلٹریشن ہے، اس کو میں پاکستان میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بڑا ٹراما سینٹر بنانا چاہتا ہوں، تقریباً 50-60 بیڈ کا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس وجہ سے میں نہیں بنا سکتا کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ 6500 آپریشن آپ کر چکے ہیں، اتنے لوگوں کو شفا آپ کے ہاتھوں سے ملی، کتنے خوش قسمت ہاتھ ہیں آپ کے۔ اس کے پیچھے ماں کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں، آپ کی محنت کا بھی عمل داخل ہے، مگر جو مریض صحت یاب ہو کے جاتے ہیں وہ کبھی دوبارہ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور کیا باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ آتے ہیں، بہت آتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ ایک سرجن تھا، وہ یہاں سے اسپین سے ایک سرجن صاحب تھے، ان کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا میں نے برین ٹیومر تھا، تو اور اس کے ساتھ اس کا برین ہیمراجی تھی، تو اس کو میں نے آپریٹ جب کیا تو اس وقت جو ہے نا مجھے اس چیز کی، وہ سارے جو ڈاکٹر ہیں دوسرے میرے دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ اس کو نہ آپریٹ کرو، اب یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود میں نے کہا یہ ایک دفعہ اس کو موقع دیا جائے۔ وہ آپریشن کے بعد برین ہیمراجی جو تھی وہ میں نے آپریشن کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 10 دن میں جو ہے نا وہ اسپین واپس چلا گیا۔ وہ آیا تھا میں 5-6 مہینے کے بعد میرے پاس آیا تھا۔ جی، یہ تھے ڈاکٹر محمد منیر، جن کی باتیں آپ نے سنی۔ ایک شعر ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، زیورخ، سوئٹزرلینڈ۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔